Hallelujah. हालेलुया। Come on loudly. Hallelujah. आइए जोर से हालेलुया। Come on, living people say loudly. Hallelujah. आइए जिंदा लोग कहेंगे हालेलुया। We are thankful to God for today's morning. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। God is a wonderful God. परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है And you are the wonderful children of the wonderful God. और आप अद्भुत लोग हैं अद्भुत परमेश्वर के। How are you? How many of you are excited this morning to be in the house of आज the Lord? कितने लोग हैं जो उत्साहित है परमेश्वर के घर में आके? What you did this morning when you got up? आज आपने क्या किया जब आप सुबह उठे? Yes. Were you excited to be in the house of the Lord? क्या आप उत्साहित है परमेश्वर के घर में आज आके? Did you think, oh, again we have to go to church, again it's a Sunday? और या फिर आपने सोचा कि अरे एक बार फिर से रविवार आ गया और फिर से हमें चर्च में जाना My है। fun day has turned into a Sunday. मेरा एक अच्छा जो रविवार था वो आज संडे में बदल गया। What was your thought this morning? आज सुबह आपके दिमाग में क्या विचार आए? Were you happy that you were excited, I will go in the house of the Lord? क्या आप खुश थे, उत्साहित थे कि ओ मैं आज भवन में जाने वाला हूँ? Yes? Yes. Your excitement should be seen on your faces. आपकी उत्साहित जो आप है वो आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। Yes, you should not be sad, you should not be tired in the house of the Lord. आप परमेश्वर के घर में दुखी और थके हुए नहीं दिखना We चाहिए। should be coming with greater expectations. आप बड़ी उम्मीदों के साथ भवन में आना The one who चाहिए। comes with greater expectations, his expectations are fulfilled in the house of the Lord. जो बड़ी उम्मीदों के साथ परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर के घर में उनकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाती है। Hallelujah. आमीन। Come on, give clap and glory to God. आइए तालियां बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। Say, Lord, I thank you for this day, Lord. कहेंगे परमेश्वर आज के दिन के लिए तेरा I thank you धन्यवाद। for you have let me coming in your house. Come on, keep clapping. धन्यवाद परमेश्वर की तूने मुझे तेरे भवन में आने You are के लिए not मौका clapping for me, you दिया। are clapping for the living God. आप मेरे लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए तालियां बजा Say, रहे हैं। Lord, thank you for everything you have done in my life. कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर हर एक चीज जो तूने मेरे जीवन में किया है। Yes, Lord. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया। You are charged up now. अब आपकी बैटरी जो है वो पूरी तरह से चार्ज हो गई है। See that it doesn't get disconnected or discharged. ध्यान रखिए कि आपकी जो बैटरी अभी चार्ज हुई है वो कभी भी कम ना हो। Hallelujah. हालेलुया। Come on. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Yes, I thank God for this wonderful time again. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये सुनहरे अवसर देने के लिए We मुझे। had a wonderful time in worship. हमने आराधना में बहुत सुंदर समय को And I बिताया was very excited to be in the worship. और मैं आराधना में रहने के लिए बहुत उत्साहित था। I thank Alap for his dedication for the church. मैं आलाप का भी धन्यवाद देता हूँ उसका जो सहयोग है चर्च के लिए। Yes, in the coming days we will look forward like everybody is involved in the church ministry. और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हर किसी का योगदान इस कलीसिया में सेवा के लिए Yes, होगा। last night pastor dropped a message. Our senior pastor dropped a message. Did you read that message? पिछली रात को हमारे जो सीनियर पास्टर है उन्होंने एक वो संदेश को ग्रुप में डाला था कि आपने उसे पढ़ा था। It was mentioned anybody who wants to get involved, give your names. वहाँ पे लिखा था अगर कोई अपना सहयोग देना चाहते कलीसिया में तो अपना नाम कृपया आके उन्हें बताए। It's a great opportunity for each one of us. ये आप सबों के लिए हम सबों के लिए बहुत अच्छा मौका है। Don't feel that I cannot do anything. ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। If you have a desire, God will open the way for you. अगर आप में एक इच्छा है तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को There are खोलेंगे। many things you can do. You can contribute in the church ministry. ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जिससे करके आपके सहयोग को आप दे सकते हैं It's कलीसिया not में। only worshiping, it's not only leading. There are small things you can contribute for the glory of God. सिर्फ आराधना और अगुवाई करना ही नहीं लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिससे आप आपका सहयोग दे सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। For that you need to give a lot of time इसके लिए आपको बहुत सारा समय देना होगा for God. परमेश्वर के The लिए। one who gives time to God, वो परमेश्वर के लिए जो आपको समय देते हैं God will also give time to you. तब परमेश्वर भी आपके लिए समय देंगे। Hallelujah. हालेलुया। You're not doing for anybody who is present. You're not doing for us. You're not doing for our family. आप यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए नहीं, आप हमारे लिए हमारे परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं You're doing it for the glory of God. लेकिन आप परमेश्वर की महिमा बढ़ाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So we have lot less of time today. आज हमारे पास थोड़ा समय कम है। It's first Sunday. जैसे ये पहला रविवार है We need to have Lord's Supper also. जिसमें हम आज प्रभु भोज की सेवाओं में भी So जाएंगे। we will quickly see the word of God. तो आज हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में Last देखेंगे। night I was meditating on the word of God. जब पिछली रात में परमेश्वर के वचन में मनन कर रहा था God gave me this word, these things to share with you. तो परमेश्वर ने कुछ चीजों को मुझे दिया कि मैं आपसे बांट सकूं। You know, the God who reversed the verdicts.
आप जानते हैं हमारा परमेश्वर वह है जो फैसलों को पलट देता है। Hallelujah. Hallelujah. The God who reverts the verdict. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो फैसलों को बदल देता है। Whatever verdicts have been passed over you or over your life or over your family, it will be reversed in the house of the Lord. आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में जो भी फैसले बनाए गए हैं, परमेश्वर उन सबों को आज बदल देंगे अपने If भवन में। anybody has passed a verdict over you, you cannot do this, or this will be your punishment. अगर किसी ने आपके ऊपर फैसले की घोषणा कर दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसके लिए नाकाम हैं, It will be तो reversed. परमेश्वर आज उसे पलट देंगे। We will see from the Bible the verdicts what God has reversed. हम बाइबल में से कुछ ऐसे फैसलों को देखेंगे जिसे परमेश्वर ने बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं Or you are just sleeping again? या फिर से आप सो रहे हैं? Do you want things to be reversed in your life? क्या आप चाहते हैं कि कुछ चीजें आपके जीवन में पलट जाए? Who all wants that? किसे कौन चाहता है ऐसा? मुझे तो ज्यादा चाहिए. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Let's read from the book of Esther. आइए एस्तर की बुक में से 9 उसके पहले वचन को हम पढ़ेंगे। अदार नाम 12वें महीने के 13वें Thank दिन you, को, Jesus. जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। Yes. Again, read it. आइए Listen एक बार- very carefully. बहुत ध्यान से इसे समझेंगे। अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा के नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। What happened? क्या हुआ यहाँ पे? It is reverse. यहाँ पे फैसला बदल गया। Tables were turned and the Jewish got the upper hand over those who hated them. यहाँ पे जो है और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल हुए, They got the upper hand. वो उनके हाथों में चले गए। How is the upper hand is given? Upper hand. उनके ऊपर प्रभुता कैसे प्रबल हुई? Who gave them this upper hand? उन्हें किसने ये प्रबलता दी? The God gave them this upper hand. परमेश्वर ने दी। It's not a normal thing. ये एक साधारण चीज नहीं है। It's not a normal thing that the things we are going will be reversed. ये साधारण बात नहीं है कि जो चीज हो गई है वो फिर से पलट दी Have जाए। we faced a situation that seems to be all the hope are gone? क्या हमने ऐसी परिस्थितियों में हम कभी आए जहाँ पर सारी चीजें बदल गई और सारी उम्मीदें चली When a गई, final decision has already been made, जहाँ पर एक जो अंतिम निर्णय है वो बोल दिया गया where है, people had already written you off, जहाँ पर लोगों ने आपके लिए अंत लिख दिया है। maybe a doctor's report, हो सकता है वो डॉक्टर की कोई रिपोर्ट हो it जाए, might be a court order, हो सकता है एक कोर्ट का कोई it ऑर्डर might निकला be a हो, family betrayal, हो सकता है परिवारों में कड़वाहट or हो, even it can be a spiritual attack. या आपका एक आत्मिक आपके ऊपर It अटैक। seems like the end was sealed. जहाँ पर ऐसा दिखता है कि अंत जो है वो पूरी तरीके से कर दिया गया है। Nothing else can be done. अब इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। Nothing else can be changed. अब यहाँ पर कुछ और बदल नहीं सकता है। That is the end verdict. ये यहाँ पर एक अंतिम फैसला होता है। But our God is a living God who changed the verdict. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो उस अंतिम फैसलों को भी बदलने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। I have come to declare to you today. आज मैं आपके सामने घोषणा करने के लिए आया Yes, हूँ। CBT Church, I have come to declare to you today. सीबीसी चर्च, आज मैं आपके ऊपर घोषणा करने के लिए We आया हूँ। serve a God. हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा We करते serve a हैं। living God हम जीवित खुदा की सेवा who करते हैं, reversed the verdict. जो हर एक अंतिम फैसलों को बदल देता है। Hallelujah. हालेलुया। Say, my God will reverse my verdict. कहेंगे मेरा खुदा मेरे सारे अंतिम फैसलों को बदल देगा। नहीं नहीं नहीं, आप सो के कह रहे, जोश से कहो, मेरा खुदा मेरे अंतिम फैसलों को बदल देगा। कम ऑन, छाती ठोक के कहो, मेरे अंतिम फैसले को बदल yes, देगा। God will reverse my verdict. परमेश्वर मेरे हर फैसलों को बदल देगा। गुंजन, God will reverse your verdict. गुंजन, परमेश्वर आपके हर एक आखिरी फैसले Yes, को बदल brother देगा। George, God will reverse your verdict. ब्रदर जॉर्ज, परमेश्वर आपके हर एक अंतिम Come on, फैसले को say बदल your देगा। name and say, God will reverse my verdict. आइए अपना खुद का नाम बोलेंगे और कहेंगे, Victor, God will reverse your verdict. ऐसा खुद का नाम बोलो। अपना खुद का नाम लेके Yes. बोलेंगे। अरे खुद का नाम लेने से डर रहे, प्रभु का नाम लेंगे कैसा?
Come on, 1, 2, 3, जोर से. अनामिक का परमेश्वर आपके हर एक अंतिम फैसले को बदल देगा. Yes. You should be confident. आपको पूरे तरीके से भरोसा होना चाहिए. To whom you are afraid? आप किससे डरते हो? People should be afraid of us. लोग हमसे डरना चाहिए. The power of darkness should be afraid of us. अंधकार की सारी शक्तियां हमसे डरनी चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. The sickness should be afraid of us. बीमारियां हमसे डरनी चाहिए. If we cannot open our mouth, अगर हम अपना मुंह नहीं खोलते हैं, then we are going to be afraid. तो हम खुद ही डर जाएंगे. Then we have to run. और हमें भागना पड़ेगा. But the one you will open your mouth, लेकिन जब एक बार आप आपके मुख को खोलेंगे, you will declare the authority of God. तब आप परमेश्वर के अधिकार को खुद के The लिए powers बोलेंगे. of darkness will fall away from you. और अंधकार की सारी शक्तियां आपसे दूर भाग जाएगी. Hallelujah. हालेलुया. The verdict will be reversed in the name of Jesus. हर एक फैसला यीशु मसीह के नाम से बदल दिया जाएगा. In the book of Esther, एस्तर की किताब में it was an irreversible decree. यहाँ पर एक ऐसी घोषणा थी जो बदल नहीं सकती A थी. death sentence signed by the king राजा के जरिए वो मृत्यु का संदेश लिख दिया गया and था. sealed by Haman. और हमान के जरिए उसके ऊपर मोहर भी लगा दी गई थी. All the Jewish, सारे यहूदी, according to the law, it was granted death. ना न्याय के अनुसार वो एक मृत्यु दंड था. The law cannot be changed. और यहाँ पर जो न्याय था वो बदल नहीं सकता That था. was the final verdict. और ये जो कानून था ये अंतिम था. See, what I am going to explain is that you understand whatever the end is. देखिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी अंत क्यों ना हो, But the God will step into your situations. लेकिन उस परिस्थिति में जब परमेश्वर आ जाते हैं, As Allah was saying, when the God is in your boat, when Jesus is in your boat, जैसे आलाप ने कहा कि उस नाव में अगर परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ in है, the situation, in the final verdict, when God steps in, उसी अंतिम परिस्थिति में, अंतिम फैसले में जब ये परमेश्वर आ जाते हैं, He turns the death into deliverance. तब वो उस मृत्यु को छुटकारे में बदल He देते turns the हैं. mourning into dancing. वो आपके रोने को नृत्य में बदल He देते turns the हैं. desire into victory in the name of Jesus. वो आपकी इच्छाओं को विजय में बदल देते हैं. Hallelujah. हालेलुया. The one who have been disasters, एक ऐसी चीज जो पूरे तरीके Destroyed. से नष्ट हो चुकी है, your loss will turn into victory. आपका हारा हुआ एक विजय में बदल जाएगा. What are you facing today? आप किस चीजों का आज सामना कर रहे हैं? I said your reports will turn. मैंने कहा आपकी रिपोर्ट बदल जाएगी. Your authorities, what they have proclaimed over you, will turn in the name of आपके ऊपर Jesus. जो अधिकार बोले गए हैं वो सारे पलट दिए जाएंगे. It happened earlier, it will happen now also. वो ये पहले भी हुआ है और ये अब भी होने वाला है. Esther went from orphan to queen. एस्तर जो है एक अनाथ से लेकर एक रानी बन गई. How is that possible? ये कैसे संभव हुआ? Because she was fearing the God. क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती She थी. was obeying वो God. परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलती थी. 9:1 says the tables were turned. और 9:1 में लिखा है कि वो मेज बदल दी गई. सिस्टर सामने आ जाइए, वहाँ इधर आ जाइए. Come. The tables were turned. जो मेज थी वो बदल दी, पलट दी How गई. is that possible? ये कैसे संभव हुआ? Who turns the table? किसने इस मेज को बदल दिया? Once the law is passed, nobody can change. जब एक बार कानून का फैसला हो गया, उससे कोई भी नहीं बदल We सकता. also cannot change. हम भी नहीं बदल सकते No हैं. human can change. कोई मनुष्य नहीं बदल सकता But the है. creator of human can change. लेकिन जो मनुष्य को बनाने वाला है वो उसे बदल सकता है. Hallelujah. हालेलुया. Today I want to say, आज मैं कहना चाहता हूँ, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम your से tables are turning away. आपकी सारी मेजें बदलने वाली है. Your stories are shifting. आपकी जो कहानियां हैं वो बदलने Your वाली है. season is reversing. आपका जो मौसम है जिंदगी में वो बदलने वाली है. Hallelujah. हालेलुया. What has been meant to destroy you? What has been meant to destroy you? ऐसी कौन सी चीज बनी है जो आपको नष्ट कर सकती है? That will elevate you. वो ही आपको उठा के खड़ा करेगी. Hallelujah. Hallelujah. The people who are standing against you will raise you up again. जो लोग आपके खिलाफ में खड़े हैं वो ही मदद करेंगे कि आप और ऊंचाई पे पहुंच If you are जाएं. persecuted in the name of Jesus, अगर आप यीशु मसीह के नाम से सताए गए हैं, the people who are persecuting you will turn to Jesus again. जो लोग आपको सताते हैं वो फिर से यीशु मसीह की तरफ मुड़ जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. What was used to be blind, you will be blessed. If you are blank,
अगर आपके पास कुछ नहीं दिखता है you will be blessed. तो आप आशीष को पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. There is anointing in the place in the house of Lord. परमेश्वर के घर में अभिषेक है। The main point today, point is God reverse human verdicts. पर यहाँ पे जो पहला मुद्दा हम देख रहे हैं, पहला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, परमेश्वर मानवीय निर्णयों को उलट देते हैं। Proverbs 21:1 says, नीति वचन उसका 21:1 में ऐसा लिखा है, राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। Hallelujah. हालेलुया। Whose heart? किसका दिल की बात हो रही है? The king. राजा के दिल। The who passes the law जो न्याय की घोषणा करता है is in the hands of our God. वो हम उसका दिल भी हमारे परमेश्वर के हाथ में बंधा Is in the hands of our God. वो हमारे परमेश्वर के हाथों में है। They उसका are दिल। controlled by our God. उसका हमारा परमेश्वर जो उसे चलाता है, How God wants, it will change. परमेश्वर जैसे चाहता है उसके मन को बदलता है। Hallelujah. हालेलुया। When a man signs a death sentence, जब एक मनुष्य मृत्यु दंड की घोषणा लिख देता है पत्र पे, God writes deliverance. परमेश्वर वहाँ पे छुटकारा लिख देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The same king signed death sentence, इसी तरीके से इस राजा ने भी एक मृत्यु की घोषणा लिखी थी, but our God God write deliverance. लेकिन हमारे परमेश्वर ने वहाँ पर उद्धार लिख दिया। You know, some verdicts are written by men, आप जानते हैं कुछ फैसले जो है मनुष्य लिख देते हैं, but the destinies are written by God. लेकिन हमारा जिंदगी का जो अंत है वो परमेश्वर निर्धारित करते हैं। Like this also happened with Esther. इसी तरीके से एस्तर के साथ भी हुआ। It was signed and sealed and legally irreversible. वहाँ पर लिख दिया गया, उस पे मोहर लग गई और वो बदल नहीं सकता था, But God came in and it changed. लेकिन परमेश्वर वहाँ पर आए और सब चीजें बदल गई। When God decides to intervene, जब परमेश्वर निर्णय लेते हैं कि वो बीच में आएंगे, even the king law bows to the kings of king. तब जो है जो राजा का निर्णय है वो भी अपने घुटने टेक देता है उस राजाओं के राजा के सामने। Hallelujah. Hallelujah. Who is your king of king? आपका राजाओं का राजा कौन है? Come on loudly. आइए जोर से कहेंगे, परमेश्वर। Yes. He is our king of king. वो हमारा राजाओं का राजा He is परमेश्वर our है। king of king. वो हमारे राजाओं का राजा है। In our life there may be many situations. हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। Reports, medical reports, financial problems, हो सकता है वो किसी मेडिकल के रिपोर्ट हो या किसी पैसे की कमी हो जाए, financial collapse. हो Yes. सकता है आप पैसों में और घट जाए, But no human decision can override God's plan. लेकिन कोई भी मनुष्य का निर्णय परमेश्वर की योजना के ऊपर नहीं है। No human decision is over God's plan, right? Yes. कोई भी मनुष्य का निर्णय परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर नहीं है। You know, human traps became his own downfall. आप जानते हैं मनुष्य का जो जाल है उसमें वो खुद ही पड़ जाते हैं। Psalm 7:15-16. Okay, it's not there. Whoever digs a pit, fall into it, it says. जो कोई एक गड्ढे को खोलता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। Human represent demonic systems, मनुष्य जो है वो शैतान की योजनाओं को दर्शाता है। jealousy, उसमें जलन होती है, witchcraft, उसमें जादू टोना होता है। that seeks to destroy God's people. वो मनुष्य परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। Many people wants to destroy God's people's life. बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों की जिंदगी को बर्बाद करना चाहते They हैं। want to attack the spiritual life of God's people वो परमेश्वर के लोगों के आत्मिक जीवन के ऊपर जीवन को नाश करना चाहते हैं, because you don't know. क्योंकि आप नहीं जानते। बाहर कोई है, उनको अंदर बुलाओ। हाँ, अंदर जगह है। थोड़ी सी जगह आप बना देंगे अपने बाजू ताकि लोग बैठ सके। अलग बाहर से अलग बाहर कुछ बुला लो। ओके। यस। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। There is a divine principle. यहाँ पर एक अलौकिक सिद्धांत है। The evil plan against you, शैतान आपके लिए योजनाएं बनाता है, against you, आपके आपके विरुद्ध में, खिलाफ में बनाता है, so that you cannot bloom. जिससे आप जो है और बढ़े नहीं। But God makes that plans to be prosperous over you. लेकिन परमेश्वर उन्हीं योजनाओं को आपके सफल होने के लिए बना देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Think of Pharaoh. फिरौन के बारे में He was देखिए। obsessed Israel with brick and water.
वो इजरायलियों को पानी और ईट ईंटों के लिए काम कर रहा था. He was. हाँ, ईंटों के लिए वो काम करवाते थे. God drowned him in water. और परमेश्वर ने उसे पानी में ही डुबाया. He will change your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे. Daniel accuser threw him in the lions den. दानियल को जो है उस सिंहों की मान में डाल दिया गया. But they were eaten by the same lions. लेकिन उन्हीं लोगों को उसी सिंहों ने जो है खा डाला. Daniel 6:24. दानियल उसका 6 उसके 24 में लिखा हुआ है. Your enemy won't just fail. आपके जो शत्रु है वो हारेंगे ही नहीं. They will fall into their own trap. लेकिन वो अपने खुद के फंदों में फंस जाएंगे. If people are planning bad against you, अगर लोग आपके बारे में बुरा विचार करते हैं, don't hate them. आप उनसे नफरत ना करें. Pray to God. प्रार्थना करें. God will turn their table. परमेश्वर उनके मेजों को बदल देंगे. Hallelujah. हालेलुया. God will turn their table. परमेश्वर उनके मेजों को बदल देंगे. The same hands raised against you will be silenced. वही हाथ जो आपके खिलाफ में उठे थे वो शांत हो जाएंगे. What was meant to crush you will elevate you. जो भी मनुष्य आपके लिए आपको नष्ट करने के लिए योजना बनाता है वही लोग आपके बढ़ोतरी का कारण बनेंगे. Genesis 50:20 says. उत्पत्ति उसका 50 उसका 20 में ऐसा लिखा हुआ है. You meant evil. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है. You know who is this? आप जानते ये कौन है? This is Joseph. ये यूसुफ है. He went through all the bad. वो सारी बुरी चीजों में गया. See the goodness of God. He is saying देखिए परमेश्वर की अच्छाई की वो फिर भी वैसा ही है. how he is loving God. वो कितना प्रेम करने वाला You परमेश्वर planned है. evil against me. He is saying. उसने कहा कि तुमने मेरे लिए बुराई का But विचार my किया, God intended it for good. लेकिन परमेश्वर ने मेरी उसी बात में भलाई का विचार किया है. People are planning evil against you. लोग आपके लिए बुरा विचार करेंगे. Remember this verse. आप इस वचन को याद रखें. It will turn good in your life. वो आपके लिए बदल कर भलाई ही उत्पन्न People are करेगी. standing against you. It will turn good in your life. लोग आपके विरुद्ध में खड़े रहेंगे लेकिन परमेश्वर उसमें भलाई का विचार People करेगा. are not supporting you. It will turn good in your life. लोग आपकी मदद नहीं करेंगे ये अच्छा रहेगा. Hallelujah. हालेलुया. Come on. Hallelujah. हालेलुया. Say everything will turn good in my life to your neighbor. कहेंगे अपने पड़ोसी से मेरे जीवन में हर चीज बदल के अच्छाई नहीं मेरे मत कहो. In your बोलो तो उनको भी अच्छा लगेगा. आपके जीवन में हर चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी. Come on. Say. आइए कहेंगे. Thank you so much. Hallelujah. हालेलुया. This happened with Joseph. यही यूसुफ के साथ हुआ. It the bad, the harm intended good. जो भी बुरी चीजें थी वो उसके लिए अच्छाई में Joseph बदल गई. brothers sold him to slavery, think he was ending his story. यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया और ये समझा कि अब इसकी कहानी का अंत हो गया है. But God made it a gloriful लेकिन story. परमेश्वर ने उसे महिमा में बढ़ा What दिया. others called rejection, जो दूसरे लोग ने उसका नकारत किया. what others will say rejection, दूसरे लोग जो कहेंगे कि ये नकार दिया गया है, God will call it redirection. परमेश्वर उसमें आपके लिए एक नए मार्ग को बदल देगा. Hallelujah. हालेलुया. People are rejecting, don't worry, God is redirecting you again. परमेश्वर आपको अगर नकार देते कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, लोग नकार देते. लोग अगर आपको नकार देंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग So you have to खोलेंगे. be very careful, right? God is redirecting you. परमेश्वर आपको फिर से नए मार्ग Joseph पे ले जाएंगे. just didn't survive. यूसुफ ने सिर्फ वहाँ पे संघर्ष नहीं किया. नहीं, उसने केवल जिया नहीं, he ruled. उसने सिर्फ अपने जीवन को जिया नहीं, लेकिन उसने उसके ऊपर अधिकार किया. He was the king. वो राजा भी बन गया. Once a slave, next time he was a king. एक बार वो जो है बंधुआई में गुलाम था, लेकिन अब वो राजा बन गया And है. his pain became someone's salvation. और उसका जो दर्द था वो किसी ना किसी व्यक्ति के लिए उद्धार बन गया. To his own brothers, he was saving them. उसके खुद के भाइयों के लिए उद्धार बना, क्योंकि उसने उन्हें बचा लिया. So that's why I said, what was meant to crush you will elevate you. इसीलिए मैंने कहा कि जो चीजें आपको नष्ट करने के लिए है वही आपको मदद करेंगी कि आप बढ़ जाएं. Hallelujah. Hallelujah. The same hammer that tries to break you, ये वही हथौड़ा था जो आपको तोड़ने के लिए the था. same hammer will build you. वही हथौड़े से आपके जीवन का निर्माण हो The जाएगा. same test you bravely survive. The same test ये वही परीक्षा है जो साहस से आपने लड़ी. become your testimony to save others. वही आपकी गवाही बन जाएंगी कि दूसरों को आप बचा लें. Hallelujah. Hallelujah. You have been crushed.
ये आप हो सकता है ना चूर चूर कर दिए It's गए हो। only because you are called to stand in the places and places of influence, ये इसीलिए है कि आप बहुत स्थानों पर खड़े रहे, लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सके, so that you can share your testimony. जिससे आप आपकी जीवन की गवाहियों को बांट So सके। the one who is standing against you, the one who is destroying you, तो इससे क्या होगा, जो आपके खिलाफ में खड़े हैं, जो आपको नष्ट करना चाहते हैं, will elevate you, वो ही मदद करेंगे कि आपका जीवन बढ़ because you जाए, are serving a living God. क्योंकि आप जिंदे खुदा की सेवा करते हैं। God's reverse spiritual attacks. परमेश्वर जो आध्यात्मिक हमलों को पलट देते हैं। There is many spiritual attacks for us. हमारे लिए बहुत सारे आध्यात्मिक जो अटैक होते हैं। If you are sensitive in your spirit, अगर आप आपके आत्मा में अगर बहुत आप नम्र है, sensitive, संवेदनशील अगर आप है, then you can understand the spiritual attacks. तभी आप समझ सकेंगे कि आध्यात्मिक हमले जो है जो वो क्या होते हैं। Then you can identify the spiritual attacks. तब आप उसे पहचान सकेंगे। Suddenly the things, everything is going fine, suddenly it changes. होता है कि हर बार हर चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक से सब बदल गया। That is a spiritual attack. यही आत्मिक पलट है, आत्मिक हमला है, So that you cannot grow, जिससे कि आप बढ़े नहीं, so that you cannot prosper. जिससे कि आपका जीवन नहीं बढ़े। Yeshaya 54:17 says, यशाया उसका 54 और उसके 17 में ऐसा लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल न होगा। I want you to all read it loudly मैं चाहूंगा together. कि हम सब मिलकर इसे जोर से पढ़ेंगे। हिंदी में, yes. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा। Hallelujah. हालेलुया। From today onwards, आज से आगे को in your prayers, आपकी प्रार्थनाओं में declare this verse. इस वचन की घोषणा करें, Whatever is against me will not prosper, जो भी चीज मेरे खिलाफ में है वो बढ़ेगी नहीं, will not prevail. वो प्रबल नहीं होगी। Hallelujah. Hallelujah. Luke 10:19 says, लूका उसका 10 और 19 में यहाँ पे भी I ऐसा have लिखा given है, you authority. देखो मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। Who is getting this authority? ये अधिकार किसे मिला है? We will get this authority. हमें ये Yes. अधिकार मिला है। Hallelujah. हालेलुया। That's why to declare the authority we should open our mouth. इसीलिए इस सामर्थ की घोषणा करने के लिए हमें अपने मुख को खोलना We पड़ेगा। should open our mouth. हमें अपने मुख को खोलना If पड़ेगा। you keep quiet, अगर आप चुप रहेंगे your authority cannot be executed. तो आपके जो अधिकार है वो कार्यशील नहीं होंगे। The reason why enemy attacks you is because इसका मुख्य कारण ये है कि शत्रु आपके ऊपर हमले करते हैं। the future that you cannot see, आपका जो भविष्य जिसे आपने नहीं देखा, the enemy knows your future शत्रु जो है आपके भविष्य को जानते हैं। more clearly than yourself. आपने नहीं देखा, उससे भी साफ रीति से आपके भविष्य को उन्होंने देख लिया That's है। why the enemy attacks you so that you cannot go for the success, the spiritual growth in your life. इसीलिए शत्रु जो है आपके उस आत्मिक आत्मा पे हमला करते ताकि आप और नहीं बढ़े। In the last sermons I said this. पिछले वचन में मैंने इसे कहा भी था, The presence of battle is not the proof of weakness. ये जो लड़ाई है ये कमजोरी का चिन्ह नहीं है। Yes, it is the proof of heavenly assignment. ये जो है स्वर्गीय काम का एक परिणाम है। Remember, in the Bible we read when Jesus was born, देखिए बाइबल में हम देखेंगे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, Herod tried to kill him, हेरोद ने उसे मारने की युक्ति बनाई, but was Jesus killed? लेकिन क्या यीशु मसीह मार दिया गया? When Moses was born, जब मूसा का जन्म हुआ, Pharaoh tried down him. फिरौन ने उसे पकड़ा। Pharaoh tried the same to kill the फिरौन ने भी वैसे ही firstborn, चाहा कि newborns. मूसा को मार डाले। Instead of asking why me, इसके बजाय कि पूछे कि मैं क्यों, say Lord, wow, it is me. कहे कि ये बहुत अच्छा है खुदा कि मुझे चुना, Because your anointing is being revealed by your adversary. क्योंकि आपके ऊपर का जो अभिषेक है वो आपके शत्रु के द्वारा आप पर आएगा। Fasting and prayer brings divine intervention in your life. उपवास और प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत चीजों को लाती If you want the tables to turn around in your life, है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेज है आपके लिए पलट दी जाए, then you should come in fasting and prayer. तब आपको उपवास और प्रार्थना में आना पड़ेगा। Esther 4:16 says, fast for me for 3 days. एस्तर 4 उसके 6 में ऐसा लिखा है, तू जाग कर शूशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो।
God wants us to fast. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उपवास करें। Esther didn't try to fight battle with tears or negotiation. एस्तर ने जो है सिर्फ आंसू के साथ उस लड़ाई को नहीं लड़ा, She fasted and prayed. लेकिन उसने उपवास किया और प्रार्थना की। She fasted and prayed. उसने उपवास किया और उसने प्रार्थना की। Fasting is not just to be hungry or to keep the food away. उपवास करना यही नहीं है कि हम भूखे रहे या भोजन को हमसे दूर रख लें। Remember, fasting is a weapon. याद रखिए, उपवास जो है हमारे लिए एक हथियार है। Anything you're praying जो किसी भी चीज की अगर आप प्रार्थना करते and it is हैं not being fulfilled, और वो पूरी नहीं होती है, you need spiritual enlightenment, you need spiritual empowerment. आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मिक सामर्थ्य बने, Fast and pray. उपवास करके प्रार्थना करें। Fasting awakes the heaven. उपवास जो है स्वर्ग को हिला देता है। Fasting wakes the heaven. उपवास जो है स्वर्ग को जगा देता है। When believers pray, जब विश्वासी जब प्रार्थना करते हैं, angels are dispatched. तब स्वर्गदूतों को नियुक्त किया जाता है। Hallelujah. Hallelujah. The heavenly, from the heaven, the angels are released for your prayers. स्वर्ग से जो है स्वर्गदूतों को भेजा जाता है आपकी प्रार्थना सुनने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। When Daniel prayed, जब दानियल ने प्रार्थना करी, when they fast, जब उसने उपवास किया, the verdict changed. तब वो जो है अंतिम निर्णय है वो बदल दिया गया। Favors is released and the doors open supernaturally. उसके ऊपर अनुग्रह आया और जो उसके लिए मार्ग जो है नए द्वार खुल गए। Hallelujah. हालेलुया। In Daniel 10:12-13. दानियल उसका इसमें नहीं है. Okay, we'll see that later. Fasting is saying, Lord, I need you more than this. उपवास करना ये कहना है कि परमेश्वर मैं तुझे इससे भी अधिक चाहता हूँ। Lord, I need you more than my food. मेरे खाने से भी ज्यादा प्रभु जी मैं तुझे चाहता हूँ। More than my physical need, Lord, I need your presence. मेरे शारीरिक जरूरत से ज्यादा प्रभु जी मैं तेरी उपस्थिति चाहता हूँ। Fasting is not easy. उपवास करना आसान नहीं है, It is sacrificing. ये बलिदान करना The है। day you will fast, that only day you will feel more hungry. जिस दिन आप उपवास करने का निर्णय करेंगे उसी दिन आपको और ज्यादा भूख The लगेगी people around you will offer more food to you. और आपके आसपास के लोग आपको और भोजन खाने का आमंत्रण देंगे You will feel, what should not I eat? I should eat everything. और आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या खा लूं और क्या ना खा That लूं। is temptation. यही एक लालच है, We need to fight that. हमें इससे लड़ना है। I am fasting because, Lord, I want you to intervene in my life. मैं उपवास इसीलिए करता हूँ कि प्रभु जी तू तेरा उपस्थिति मेरे जीवन I में need दे। your presence in my life. तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में चाहिए। I want you to reverse my verdict, Lord. That's why I am fasting. मैं ये चाहता हूँ प्रभु जी कि मेरे सारे फैसले तू बदल दे, इसलिए मैं उपवास करता हूँ। Say, Lord, I need you more than this. कहे प्रभु जी इससे ज्यादा मैं तुझे And चाहता when हूँ। God hears और जब परमेश्वर सुनेंगे that kind of hunger, उस तरीके की भूख, Lord, that kind of hunger in your life, परमेश्वर चाहते उस तरीके की भूख आपके जीवन He में। moves in the way that bypass logic, laws and limitations. He moves in परमेश्वर जब उस परिस्थिति में आते हैं and He bypasses everything. और वो सारी चीजों को अलग कर देते हैं। God will bypass the laws, परमेश्वर सारे नियमों को आपके फैसलों को बदल logic, आपके जो तर्क वितर्क है उसे बदल देंगे and all the limitations. और आपकी जो सारी बाधाएं उसे भी। Me and you have limitations, मेरी और आपकी कुछ बाधाएं हैं, but my God doesn't have limitations. लेकिन मेरे परमेश्वर की नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Loudly. जोर से कहेंगे हालेलुया। Yes, our God doesn't have limitations. मेरे परमेश्वर के लिए कोई सीमाएं नहीं है। God favors cancel every demonic decree. परमेश्वर का जब हमें फेवर मिलता है तो वो शैतान की सारी चीजों को हमारे ऊपर से मिटा देता Psalm है। 5:12 says, भजन संहिता की किताब उसका 5 और 12 में ऐसा लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। favor isn't fair, it's divine. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए अलौकिक है। Esther found favor of the king, एस्तर ने जो है राजा का अनुग्रह पाया and the death decree was reversed. और जो मृत्यु दंड था वो पलट दिया गया। Hallelujah. हालेलुया। How we will get this favor? ये अनुग्रह हमें कैसे मिल सकता We need है? this kind of favor. हमें इसी तरीके का अनुग्रह चाहिए। That whatever, Lord, is negative in my life should be reversed. मेरे जीवन में जितनी नकारात्मक चीजें प्रभु You जी know, उसे तू favor बदल doesn't दे। mean permission. किसी का अनुग्रह मिलना इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी सहमति ले रहे हैं। Favor doesn't ask for excess. अनुग्रह जो है उसके लिए कोई Excess. क्या बोलेंगे? You understand excess, ना? दरवाजे जाने के लिए excess लगता है, ठीक है? Favor doesn't need that.
अनुग्रह को वो सब चीजों की जरूरत नहीं है। It just open the doors. ये सिर्फ द्वारों को खोल देता Just है। like if you are standing in front of a door which has a pin code to be entered, जैसे समझ लीजिए एक द्वार है जहाँ पर आपको अंदर जाने के लिए एक पिन without कोड the लगा हुआ pin code है। you cannot access inside the door. उस पिन कोड को लगाए बिना आप उस दरवाजे के अंदर नहीं जा But my सकते। church, if you have favor of God, लेकिन मेरे कलीसिया के लोग अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर when you है, stand in front of the door, it will get open. तो जब आप उस द्वार के सामने खड़े रहेंगे वो द्वार अपने आप आपके You लिए खुल don't need जाएगा। access pin code, nothing. आपको अंदर जाने के लिए कोई पिन नंबर That की is the जरूरत favor नहीं I am talking है। about. यही परमेश्वर का अनुग्रह की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Favor moves you from the back to the front. अनुग्रह जो है आपको पीछे से सामने तक लेके चले Hallelujah. जाएगा। हालेलुया। Favor will move you अनुग्रह आपको लेके चलेगा। from overlooked to celebrated, जहाँ पे आपको अनदेखा किया गया वहीं पर आपके लिए उत्साह मनाया जाएगा। from accused to appointed. सताए जाने से। जहाँ पर आपको सताया जाएगा वही आपकी नियुक्ति हो जाएगी। You know, many of us are trying to fight the demons with arguments. हम जानते हैं हम बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान से हम अपने बोल चाल से वाद विवाद से हम लड़ते हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर कहते हैं stand still, I will cover you with my favor. तू खड़ा रहे और मैं तुझे मेरे अनुग्रह से तुझे I will ढांपूंगा। cover you with my grace. मेरे अनुग्रह से मैं तुझे भर I दूंगा। will cover you with my covering. मैं तेरे ऊपर एक कवर को रख दूंगा। Don't fight. तू खुद मत लड़, Just stand सिर्फ खड़ा रहे and say, Lord, show your favor. और कहे परमेश्वर तू मुझे तेरा अनुग्रह Show me दिखा, your favor. तेरा अनुग्रह दिखा You will प्रभु see जी। the favor of God. और तब आप परमेश्वर के अनुग्रह को Favor isn't just emotion. देखिए। अनुग्रह जो है सिर्फ एक आपका इमोशन नहीं है, भावुक नहीं, yes. It is supernatural shield. ये एक अलौकिक आपके लिए एक शील्ड है। When favor falls, every curse must fall in the name of Jesus. जब अनुग्रह आता है तो हर तरीके का श्राप यीशु के नाम से गिरता है। Hallelujah. हालेलुया। The last point is God reverse impossible situations. और जो दूसरी आखिरी चीज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हर एक अंतिम फैसले को बदल देते हैं। What is the impossible situation of your life today? आपके जीवन का कौन सा ऐसा असंभव चीज है? Do you have any impossible questions, impossible situations? क्या आपके जीवन में ऐसे कोई असंभव सवाल है, असंभव चीजें हैं? Some desires, some dreams, कुछ इच्छा some है, plannings कुछ- which is impossible for you right now. कुछ इच्छा है, कुछ सपने या कुछ योजनाएं जो आपके लिए असंभव है। My God will reverse the impossible तो situations. मेरा परमेश्वर उस असंभव को संभव में बदल देगा। I want you to remember the impossible मैं situations. चाहता हूँ कि आप लोग उस चीजों को याद करें कि कौन सी परिस्थिति आपके लिए असंभव है। What you want to be reversed. आप कौन सी चीजों को चाहते हैं कि आपके लिए बदल दी जाए। Remember and keep in prayers while we are hearing the word of God. उसे याद रखें और उसके लिए प्रार्थना करें जब हम वचन सुनते हैं। Luke 1:37 says, लूका उसका okay. एक और उसका 37। For with God nothing is impossible. मेरे परमेश्वर के साथ कोई भी चीज Come असंभव on, नहीं say, है। मेरे परमेश्वर के आइए साथ. कहेंगे मेरे परमेश्वर के साथ कोई भी चीज असंभव नहीं Come है। on, say 2 more times. आइए 2 बार और कहेंगे मेरे Raise your परमेश्वर। hands and say, अपने हाथों को उठा के 1 more time. मेरे परमेश्वर के साथ कोई भी चीज असंभव नहीं है। You are declaring the power of God over your life. आप परमेश्वर की सामर्थ्य की घोषणा कर रहे हैं When अपने life जीवन पे। reaches to a point where human hopes are gone, when life जब- reaches to a point जब जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर आ जाती है when human hopes are gone, जहाँ पर मनुष्य की जो आशा है वो खत्म हो जाती है, that is when divine reverse begins. तभी परमेश्वर का अलौकिक फैसला जो है पलट God जाता है। waits until things are completely impossible, परमेश्वर रुकता है जब तक सारी चीजें असंभव न हो जाए, so that we don't take the credit. Let the credit be given to our God alone. जिससे हम सारी जो क्रेडिट से हम वो खुद ना ले लेकिन हम परमेश्वर को दे दें, So His glory cannot be shared. ताकि उसकी महिमा जो है वो बांट न दी He जाए। specializes in turning dead and into destiny doors. उसने मृतकों को जिलाया और मार्गों को खोला है। Hallelujah. हालेलुया। Valleys into victory. Valleys तराई. तराई में से जो है होकर उसने विजय को दिया है। Hallelujah. Failure into favor. हार जाने को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में बदला है। Lazarus was dead. लाजर जो है मर गया था। Can anything more can happen to a dead? क्या एक मरे हुए व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है? But the verdict was reversed. लेकिन परमेश्वर ने वो निर्णय को बदला। Hallelujah. हालेलुया। Lazarus was dead. The verdict was reversed. लाजर मर गया था लेकिन वो निर्णय बदला गया। John
43-44 says, यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसका 43 में Jesus लिखा called है, out, Lazarus, come forth. यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकला। Hallelujah. हालेलुया। Lazarus wasn't just sick. लाजर जो है सिर्फ बीमार था, वो बीमार नहीं था, He वो was dead. लेकिन वो जो है मर चुका था। Not only that, he was dead for 4 days. इतना ही नहीं, लेकिन उसे मर के भी 4 दिन हो चुके He was थे। wrapped in the clothes, वो उन कपड़ों में बांध दिया गया था। stone sealed and buried. उसकी कब्र के बाहर जो है एक बड़े पत्थर से मुहर भी लगा दी गई थी। Every physical earthly Vedic said it's over. हर एक जो संसारिक शारीरिक मनुष्य कहता था कि बस ये खत्म हो चुका है, Impossible. ये असंभव है। But heaven never signs off a situation just because men do. लेकिन स्वर्ग जो है इसे करता है क्योंकि मनुष्य ये चीज नहीं कर पाएगा। Yes, heaven never leaves. पर स्वर्ग जो है कभी छोड़ता नहीं है, Because man leaves, heaven never leaves. क्योंकि मनुष्य जो है छोड़ देता है लेकिन स्वर्ग कभी नहीं छोड़ता है। We can lose the hope. हम जो है आशाओं को छोड़ देते हैं, But our God is still looking at us to create and reverse the tables. लेकिन हमारा परमेश्वर फिर भी हमें देखता है कि वो बनाए और हमारी इस मेज को बदल दे। Hallelujah. हालेलुया। When you look to God, जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, it's too late. ये बहुत लेट हो गया है। God word can be reversed death itself. परमेश्वर का वचन उस मृत्यु को भी पलट देता है। You know, Jesus didn't ask the permission from the tomb. आप जानते हैं यीशु मसीह ने उस कब्र से जो है परमिशन नहीं मांगी ऐसा करने। Jesus didn't negotiate with the grave. यीशु मसीह ने उस कब्र के साथ में जो है बातचीत नहीं करी, He released a command. लेकिन उसने एक अधिकार को वहाँ पे Hallelujah. बोला। हालेलुया। Come on, loudly. आइए जोर से कहेंगे एक साथ आना पड़ेगा. हालेलुया। We need to be one in spirit. हमें आत्मा में एक होना You पड़ेगा, need to be excited. हमें उत्साहित रहना पड़ेगा। Don't think what my neighbor will say. I say hallelujah loudly. आप ये मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, आप जोर से बोलिए Hallelujah. हालेलुया। Yes, you need to grow. हमें बढ़ना है, Yes, you need to receive. आपको ग्रहण करना है। You're not receiving by a man, you're receiving, I'm just a vessel here. आप किसी मनुष्य से नहीं ग्रहण कर रहे, मैं सिर्फ एक पात्र हूँ परमेश्वर It's की God कार्य who में। is giving you. जो परमेश्वर है जो आपको देते हैं। Okay, hallelujah. हालेलुया। He released the resurrection command. उसने जो है पुनरुत्थान के लिए घोषणा करी, And that was the dead responded to the voice of the living word. तभी जो है उस मृत्यु देह ने परमेश्वर के शब्दों को सम्मान किया। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes God allowed the situation to decay कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आ जाए so that he can declare his power. जहाँ पर वो अपने सामर्थ की घोषणा कर पाए। Let's look to Daniel. आइए दानियल की किताब में देखेंगे। Daniel was in the lion's den. दानियल जो है सिंहों की मान में था, And God shut the mouth of the और lions. परमेश्वर ने जो है उस सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। पढ़ो. मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। If these lions were hungry for days, अगर ये सिंह जो है बहुत दिनों से अगर भूखे हैं, and you have a good biryani like meal for them, और आप उनके लिए अच्छी अच्छी बिरयानी जैसे कुछ खाने की चीजें अगर डालेंगे, and God make their mouth shut, और परमेश्वर अगर उनके मुंह को बंद कर देंगे, they might have said to God, तो हो सकता है वो कहते होंगे परमेश्वर से, you have given but we cannot eat. तुमने दिया तो है पर हम खा ही नहीं सकते। See the hunger, they are obedient to God. देखिए उनकी भूख की वो कितने आज्ञाकारी रहे परमेश्वर के साथ। They know the voice of the Creator. वो उनके बनाने वाले की आवाज को जानते थे। We also need to know the voice of our Creator. हमें भी अपने बनाने वाले की आवाज को सुनना चाहिए। Daniel here, यहाँ पर दानियल जो है, was he harmed? क्या उसका कोई हानि हुई? He was harmless. उसकी कुछ भी हानि नहीं हुई। He was thrown into a den full of lions. वो उस मान में डाल दिया गया जहाँ पर बहुत सारे सिंह थे। Why he was put? वो क्यों डाल दिया गया था? Not because he has sinned. इसीलिए नहीं कि उसने पाप कर दिया था, He was put because he was praying. इसीलिए डाला गया क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। He was not put because he was doing anything unlawful. उसके इसलिए नहीं डाल के गया कि उसने कानून के खिलाफ कुछ कर दिया। He was praying to his God. इसीलिए डाला गया क्योंकि वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। Still, फिर भी he accepted it.
उसने उसे भी ग्रहण कर लिया, because he knows his God is a greater God. क्योंकि वो जानता था उसका परमेश्वर महान है। Hallelujah. हालेलुया। God doesn't always stop the attacks, परमेश्वर हमेशा जो आपके ऊपर आने वाले हमलों को रोकते नहीं हैं, but he will neutralize the danger. लेकिन उसमें जो खतरा है उसे वो कम कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Many times, many of the testimony I've heard, मैंने ऐसी बहुत सारी गवाहियों को सुना है, people met with accidents, लोग जो है दुर्घटना में चले गए, but they are not harmed. लेकिन उनकी कुछ भी हानि नहीं हुई। No severe casualties. उनमें बहुत सारी दुर्घटना That में is हानि the नहीं power of God which neutralizes the danger. हुई। यही हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य की हर एक दुर्घटना की प्रभाव को कम The कर देते lions हैं। were still there सिंह अभी भी वहाँ थे, with no one's difference. वहाँ पे कोई बदलाव नहीं था। God was there too. परमेश्वर भी वहाँ पर थे, They were quiet. वो चुप रहे। There are many times you are surrounded by enemies, अब बहुत बार ऐसे होता है, आप शत्रु से घेर दिए जाते हैं, betrayal, कड़वाहट, death, कर्ज में, sickness. बीमारियों में, But the mouth of those lions cannot harm you. लेकिन शत्रु के जो मुंह है वो आपकी कोई हानि नहीं कर सकते। When you walk with the lion of Judah, जब आप यहूदियों के शेर के सिंह के साथ चलते हैं, what the other lions will do? तब दूसरे सिंह आपका क्या ही कर सकते हैं। Nothing can happen to you. आपको कुछ भी नहीं हो सकता। The lion of Judah is with you. यहूदियों का राजा आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। The fear, that threat जो डर है will trap you. आपको पकड़ लेगा। The fear doesn't want you to proclaim the word of God. ये जो डर है आपको अनुमति नहीं देगा कि आप परमेश्वर के नाम की घोषणा But you करें, need to overcome your fears. लेकिन आपको उस डर से बाहर आना है। Paul was imprisoned, पौल जो है बंधुआई में था, yet the chain broke through praise. लेकिन फिर भी वो उसकी जो जंजीरें थी वो प्रार्थना से टूट गई। Acts 16:25-26. हाँ. प्रेरितों के काम उसके 16-25 में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ। What happened in there? क्या हुआ यहाँ पर? God intervened. परमेश्वर वहाँ पर मध्यस्थी किया। Did they requested anybody क्या उन्होंने किसी को रिक्वेस्ट किया? or any guards? किसी वहाँ पे जो काम करने वाले गार्ड Please थे release our chains. कि हमारी इस जंजीरों को खोल दो। We need to learn. हमें सीखना पड़ेगा। Stop requesting people. लोगों के सामने निवेदन करना बंद कर दें। Pray, start praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें। In the bondages, बंधुआई में भी this Paul and Silas are praising God. पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे In थे। this bondages, इस बंधुआई में भी they are kneeling and worshiping God. वो घुटनों पर आके परमेश्वर की आराधना कर रहे But थे। we are very sorry to say, we are unfortunate. मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम जो है हम दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं करते। Physically, we don't have bondages. हमारे पर शारीरिक रूप से ऐसे कोई बंधन तो नहीं But है, how are we praising God? लेकिन हम कैसे आराधना करते हैं? The one who are in chain can praise God and the earth quakes. जब एक बंधुआई में होकर आराधना कर सकता है और भूकंप आ जाता है. How better, how more we can praise and worship our God. हम कितने अच्छे से और कितने अच्छे रीति से परमेश्वर की आराधना कर सकते How हैं। can we lift our hands for our God? हम अपने हाथों को कैसे उठा सकते हैं परमेश्वर के लिए? If the prisoners are praying and the earth can quake, and if you and me will worship God, what more we can do? जब बंधुआई में बंधे लोग हाथ बंधे होने के बावजूद भी प्रार्थना करते और भूकंप आ सकता है, तो जब हम हाथों को उठा के आराधना करेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा? I want you to understand this. मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें। This is for our growth. ये हमारी जीवन के बढ़त के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। We need to praise God. हमें परमेश्वर की आराधना करनी Paul है। was in prison, पौलुस जो है बंधुआई में था, but they started praising God. लेकिन फिर भी वो आराधना करना चालू We किया। need to have that commitment. हमें उस तरीके की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। Whatever around happens to me, I will praise my God. मेरे आसपास में चाहे जो कुछ भी होता रहे, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। If I am in prison also, I will praise God. अगर मैं बंधुआई में होऊंगा तो भी मैं आराधना If I am करूंगा। on my sick bed also, I will praise my God. अगर मैं अपने बीमारी के बिछौने पे क्यों ना हो, मैं परमेश्वर की आराधना If करूंगा। I am jobless also, I will praise God. अगर मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है तो भी मैं आराधना ही करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। If I am not having hope also, I will praise God. अगर मेरे पास कोई उम्मीद भी नहीं है तो भी मैं आराधना करूंगा। You know, when they sang, आप जानते हैं जब उन्होंने गीतों को गाया, heaven responded.
स्वर्ग ने उनके लिए प्रतिक्रिया की The ground shook. और जो धरती है उसमें बड़ा भूडोल हुआ। Chains broke. उनकी जो जंजीरें थी वो टूट गई, Doors opened. सारे द्वार जो है खुल गए, Not just for them, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, but for other prisoners also. लेकिन जो और वहाँ पे कैदी थे उनके लिए भी। Your praises will break the bondages around a radius. आपकी जो आराधना है वो आपके आसपास के सभी के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Because you are saved, others will be saved because of you. क्योंकि आप बचाए गए हैं तो आपके जरिए और दूसरे लोग भी बचाए जाएंगे। Why did God wait until midnight? परमेश्वर मध्य रात्रि तक क्यों रुके रहे? Because midnight is when it's dark, right, full before the dawn. क्योंकि मध्य रात में जो है पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। Praise isn't powerful आराधना सामर्थी नहीं हुई because the situation changes. क्योंकि उनकी परिस्थिति बदल गई। Praise is powerful आराधना जो है वहाँ पे सामर्थ्य बनी because it has faith even when nothing changes. क्योंकि उनका भरोसा था कि हर चीजें बदल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Your praise confuses the enemy. आपकी जो आराधना है Yes. वो शत्रु की सारी योजनाओं में गड़बड़ी डाल देगी। They will be upset. वो निराश हो जाएंगे। Your enemy will be laughing. आपके शत्रु हंसने लगेंगे। No, you will be laughing on your enemies. आप जो है खुद हंसेंगे अपने शत्रुओं पर। You are planning bad against me. करते रहो. तुम मेरे लिए बुरा सोचते रहो। You are making a trap against me. बनाते रहो. तुम मेरे लिए जाल डाल रहे हो, डालते रहो। Whatever you do against me, the enemy will fall in that trap. जो तुम मेरे खिलाफ करोगे शत्रु, तुम खुद ही उसमें गिर जाओगे। Your enemies will be confused. आपके जो शत्रु है वो भ्रमित हो जाएंगे। Your worship shakes. आपकी आराधना में जो है, आपकी वर्शिप हिला देती है। आपकी आराधना जो है सब चीजों को हिला देती है। जिसको हिलने की जरूरत है आपकी आराधना उसे हिला देगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो बंधन टूटने की जरूरत है आपकी आराधना वो बंधन तोड़ देगी। हालेलुया। आमीन। Your worship will do the rightful thing in the rightful situations for you. आपकी आराधना जो है सही चीजों को सही समय पे करेगी। When you will lift your voice in prison, जब आप बंधुआई में भी आपकी आवाज को उठाएंगे, the prison cannot hold you. तो वो जो बंधुआई है वो आपको रोक नहीं रख सकती। When you will lift your voice on the sick bed, जब आप आपकी बीमारी के बिछौने पे अपनी आवाज उठाएंगे, the sick bed will not hold you. तो वो बीमारी का जो आपका बिछौना है वो आपको पकड़े नहीं रख Everything सकेगा। will be reversed in the God's presence. हर चीज परमेश्वर की उपस्थिति में बदल दी जाएगी। Everything will change in God's presence. हर चीज परमेश्वर की उपस्थिति में बदल दी जाएगी। That's why we serve a God who reverses the verdict. इसीलिए हम ऐसे परमेश्वर की सेवाएं करते हैं जो अपने सारे फैसलों को बदल देता है। Hallelujah. हालेलुया। Look to God today. आज परमेश्वर की ओर निहारे। What are the things which I ask you to remember you want to be reversed? जो चीजें मैंने कहा था कि आप याद रखें जो बदल जानी चाहिए, It will change in your life. वो सब आपके जीवन में बदलेगी। God will reverse the verdict. परमेश्वर हर एक फैसलों को बदलेगा। God will change the situations. परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा। God can raise the dead again. परमेश्वर उस मृतदेह को फिर से जिलाएगा। We said our God is a powerful God. हमने कहा हमारा परमेश्वर सामर्थी है। No power will stand against you. ऐसी कोई सामर्थ नहीं जो आपके खिलाफ खड़ी रहेगी। No power of darkness will stand prevail against you. अंधकार की ऐसी कोई सामर्थ नहीं जो आपके खिलाफ खड़ी रह पाएगी। If you need help, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है, look to God. तो परमेश्वर की ओर निहारे। What bondages you are in, जो भी बंधनों में आप हैं, what spiritual bondages we are in, जो भी आत्मिक बंधनों में आज हम हैं, look to God. परमेश्वर की ओर देखिए। God is powerful. परमेश्वर सामर्थी है। He is able to reverse your verdict. वो आपके हर एक फैसलों को बदल देने के लिए है। What are the verdict passed over you? आपके ऊपर जो भी फैसले कर दिए गए हैं, What are the verdict people is passing over you? लोगों ने जो भी अंतिम निर्णय आपके ऊपर कर दिए हैं, Don't worry. चिंता ना करें। Don't worry for medical reports. आपके उस मेडिकल रिपोर्ट के लिए चिंता ना Don't करें। worry for financial collapse. आपके पैसों की समस्या के लिए आप चिंता ना करें। Look to God. परमेश्वर की ओर निहारे। From where you have lost, you will reap 7 folds. जहाँ पर आपने खोया था वहीं से आप 7 गुना पाओगे। That is the reverse our God will do. मेरा परमेश्वर इसी तरीके का बदला कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। He can change. वो बदल सकता है। He changes the law. वो उस निर्णय को बदल सकता He है। is a limitless God. उसकी कोई सीमा नहीं है मेरे Before we परमेश्वर end, की। इसके पहले कि हम समाप्त I करें, will just share a short
story again. मैं एक छोटी कहानी आपके साथ में फिर से बांटना चाहूंगा। Yes, a short story I'll share with you. मैं एक छोटी कहानी आपके साथ बांटना चाहूंगा। There was a boy एक बार एक लड़का था and he was in prison, और वो बंधुआई में था। and it was the time that it was his hearing, अब ये समय आ गया था कि उसके लिए निर्णय की घोषणा की जाए, and that was the last hearing to be done. और ये जो है एक अंतिम निर्णय होने वाला था। And he was sitting with his mother. और वो अपनी माँ के साथ बैठा था। Her mother is praying उसकी माँ प्रार्थना कर रही थी। and spending last moments with him ये अंतिम क्षण था उसकी माँ के साथ उसका, before the hearing. इस सुनवाई के पहले। See the heart of a mother इस माँ का हृदय देखिए, praying, प्रार्थना कर रही है, not losing hope. एक उम्मीद को नहीं छोड़ा अब तक। But the boy has lost the hope. लेकिन उस बालक ने जो सारी उम्मीदें खो दी। And now they sat on the bench and shared few moments. और अब वो एक स्थान पर बेंच पे बैठ के कुछ क्षणों को अपना साझा कर रहे एक में से। And mother is sharing her. और माँ ने जो है अपनी चीजों को उससे कहा, Have faith. विश्वास रख, God will do the reverse for you. परमेश्वर तेरे लिए फैसलों को बदल देगा। Have faith. विश्वास रख। But he's saying, लेकिन उसने कहा, this is the last hearing, mom. मम्मी ये जो है लास्ट सुनवाई है, Nothing can be done more. इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा। I have to pay for my sins. मेरे पापों के लिए मुझे सजा मिलेगी, I will be punished मुझे सजा मिल जाएगी, because what I have done, I have to pay for that. क्योंकि जो भी मैंने किया है उसके लिए मुझे भरपाई करनी Nobody will nothing can be done. और इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकेगा। There are proof against me. मेरे जो खिलाफ में जो है उन्हें सबूत भी मिल गए हैं। There are people who are testifying against me. ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो मेरे लिए गवाही देते हैं। Because they are saying the truth because I was wrong. उन्होंने जो कहा वो सच है क्योंकि मैंने गलत किया है। Both are spending time together. अब दोनों मिलकर एक अच्छा समय बिता रहे हैं। After few moments, कुछ ही क्षणों के बाद they both enter inside. वो दोनों जो है अंदर चले जाते And the हैं। hearing is done. और अब जो वहाँ पे जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। Both the advocates and the lawyers are doing their proceedings. जो वकील थे वहाँ पर और जो जज थे वो एक में के साथ वाद विवाद करना शुरू किया उन्होंने। And this judge was known for his rude decisions, or he was not lenient. और यहाँ पर जो ये जज था उसका स्वभाव ऐसा था कि वो थोड़ा सा कठोर हृदय वाला था। He was not lenient. And it happened और ऐसा हुआ after doing all the proceedings, और ये सब सुनवाई के बाद में as the boy was expecting, it happened that way. जैसा वो लड़के ने उम्मीद किया था वो वैसा ही हुआ। He was for the life imprisonment. वो जो है आजीवन के लिए उस बंधुआई में डाल दिया गया। And after that, suddenly a moment changed. और उसके बाद में अचानक से चीजें बदल गई। The final verdict was declared. और अंतिम निर्णय जो है वो आ गया। The judge stood from the chair. और वो जो जज थे वो अपनी चेयर से खड़े हो गए। Something changed his heart. कुछ तो भी चीज उसके दिल में बदल गई। Something changed. कुछ तो भी बदलाव। He came down. वो नीचे आया। He said, उसने कहा, I have to give punishment. मैं चाहता था कि इससे सजा दे The दूं। law has to be given as punishment. Should be given for the law. कानून के हिसाब से इसे सजा होनी चाहिए। But लेकिन I want to take your place. मैं तुम्हारे स्थान पे आना चाहता हूँ। I want to take your place. मैं तुम्हारे स्थान पे आना चाहता हूँ। I want to give you a chance to live. मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ कि तू जी ले। I will take your punishment. मैं तेरे जो है सजा को ले लूंगा। And the boy was weeping. और जो वो लड़का है वो रोने लगा। He was crying. वो रोने लगा। He was crying वो रोने लगा because he wanted a chance, क्योंकि वो एक मौका चाहता so था that he will not sin again. जिससे कि वो फिर से पाप ना कर He will पाए। not do unlawful things again. वो फिर से कानून के खिलाफ चीजें न कर पाए। In this story, इस कहानी में Jesus is our judge. यीशु मसीह जो है हमारा न्याय करने He वाला has है। taken our place. उसने हमारी जगह ले ली है। The sin what we were supposed to have, जो पाप हमने किया,
the sin, the punishment what we were supposed to have, सजा जो हमारे लिए थी, Jesus had it all. यीशु मसीह ने उसे पूरा ले लिया। Jesus took our pain. यीशु मसीह ने हमारे दर्द को ले लिया। Jesus took our suffering. यीशु मसीह ने हमारे सफरिंग को ले लिया। Jesus took our shame. उसने हमारी शर्म को ले लिया। He took it all away उसने ये सब हमसे दूर कर दिया, so that we get a chance. जिससे हमें एक मौका मिल जाए, We get a chance again हमें एक बार फिर से मौका मिल so जाए, that we can enjoy the blessings of God again. जिससे हम परमेश्वर की आशीषों का फिर से उत्साह मना सकें। Don't let this opportunity go. इस मौके को जाने ना दे। You want the things to be, the verdicts to be reversed. आप चाहते हैं अगर कि फैसले आपके ऊपर जो किए गए वो बदल जाए, It can happen. वो हो जाएगा। God will intervene in your life. परमेश्वर आपके जीवन में आ When जाएगा। Jesus is in your boat, you cannot sink. जब आपके नाव में जब यीशु मसीह है तो आपकी नाव डूब नहीं सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, let's stand on our places. आइए हम अपने स्थानों पे खड़े We हो will जाएंगे end with our prayer. और हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। In your mind, in your heart, give control to God. आपके दिल पर, आपके मन पे परमेश्वर को पूरा नियंत्रण दे दे। Things what you want to be reversed, जो भी चीज आप बदल देना चाहते हैं look to it. उसकी तरफ देखिए Remember the things, the verdicts you wanted to be reversed. और उन चीजों को देखिए कैसे कौन से फैसले हैं जिसे आप चाहते कि बदल दे जाए। What people has said over you, you want to be reversed. जो लोगों ने आपके ऊपर कहा उसे बदल दिया जाए। We were supposed to have the punishment, but Jesus took our place. हमको वो सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह ने वो सजा लिया। He took our pain. उसने हमारे दर्द को ले लिया। But why are we still in suffering? लेकिन आज भी क्यों हम उस तकलीफ में हैं? We need to declare the authority. हमें अधिकार की घोषणा करनी पड़ेगी। Even in the lion's den, you will not be harmed. सिंह की मांद में भी आपकी कोई हानि नहीं होगी। Even in the fire, if you walk, you will not burn. अगर आप आग में होकर भी जाएंगे तो आप नहीं जल पाएंगे। Even in the land of famine, you will not have hunger of anything. You will have not lack anything. अकाल के समय में भी आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। Come on, raise your hands and pray to God. आइए अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। In next 5 minutes, we are going to end. अगले 5 मिनटों में हम इसे समाप्त कर देंगे। I want you to pray. मैं चाहूंगा कि आप सब प्रार्थना करें। Say, Lord, in my life, कहे प्रभु जी मेरे जीवन में I have this situation, and I'm praying in the name of Jesus, the verdict to be reversed. मेरे पास ये से समस्या है प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारे फैसले बदल जाए। Come on, open your mouth and pray, church. आइए अपने मुख को खोल के प्रार्थना Your करें। prayer will deliver you. आपकी ही प्रार्थना आपको छुटकारा Your देगी। faith will deliver you. आपका विश्वास आपको छुटकारा देगा। Your words, your authority will deliver you. आपके शब्द, आपकी घोषणा आपको Come on, छुटकारा change देगी। your verdicts in the name of आइए Jesus. अब यीशु मसीह के नाम से Pray सारे with फैसलों को power. बदलेंगे। सामर्थ से Pray with प्रार्थना power. करें। सामर्थ से Come on, प्रार्थना open your करें। mouth. Open your mouth. अपने मुख को खोलेंगे। Lord, I want to change my spiritual life. कहेंगे प्रभु जी मेरे आत्मिक जीवन में बदलाव चाहता Right हूँ। now, in the name of इसी Jesus. समय यीशु के नाम Come में on, Lord Jesus. Intervene, Lord. परमेश्वर तू Intervene. मध्यस्थी कर। Lord, I want you to enter in my मैं life. चाहता हूँ खुदा तू मेरे जीवन Enter में in my आए। situations. मेरी परिस्थितियों में तू आ जाए। Enter in my problems. मेरी समस्याओं में तू आ जा। Enter in my sickness. मेरी बीमारियों में आ जा। Enter in my family. मेरे परिवार में तू आ जा। Enter in my financial collapse. मेरे पैसों की तंगी में तू आ Oh, जा। intervene, Lord. तू मध्यस्थी कर Come, come, परमेश्वर। come, church. Pray, आइए pray, कलीसिया pray. प्रार्थना करेंगे। We are nothing. हम कुछ भी नहीं We are हैं। nothing. हम कुछ भी नहीं Our हैं। God, you are everything. हमारा परमेश्वर है जो सब You are कुछ a है। master, Lord. तू खुदा है मेरे। Come on, church. Open your थैंक यू voices. लॉर्ड जीसस। The verdicts are going to be reversed today. सारे फैसले आज बदल दिए जाएंगे। The verdicts are going to be reversed today. सारे अंतिम फैसले आपके ऊपर के बदल दिए Decisions are जाएंगे। going to change today. सारे निर्णय आज बदल दिए Your जाएंगे। hopeless will see if you're getting hopeless. Don't be hopeless. You should be hopeful because you serve a living God. अगर आपको कोई भी आशा नहीं है तो परमेश्वर आज आपको आशा देंगे। You serve a living God. आप एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप एक जीवित खुदा की आराधना करते You हैं। don't have bondages. Come on, raise your hands. आपके पास अगर बंधन नहीं है तो अपने हाथों को उठा लेंगे हम। Yes, Lord. This is me, Lord. हाँ प्रभु जी ये मैं हूँ। Oh, this is me, Lord, praying to ये you. मैं हूँ प्रभु जी, तो तुझसे प्रार्थना करता है। Forgive my sins, Master. मेरे पापों की तू क्षमा कर दे स्वामी।
I still look to you, Lord. मैं फिर आज भी तुझे देख ही रहा हूँ। Lazarus was dead for 4 days. लाजर 4 दिनों के लिए मर गया था। Still the command of resurrection gave life to Lazarus again. लेकिन जो अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उस पे बोला, उसे फिर से जीवन मिला। Your situations which are dead in your eyes आपकी परिस्थितियां जो आपके नजरों में मर चुकी है, will change. वो बदल जाएगी। Come on, I want to hear your voice. मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। Loudly. जोर से More आवाज power. में प्रार्थना करेंगे और सामर्थ Hungry. के साथ और भूख के साथ प्रार्थना करेंगे। Pray with hunger and thirst. आइए उस भूख और प्यास के साथ प्रार्थना को करें। धन्यवाद यीशु। Thank you. Say, Lord, I need your favor. कहे परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह को चाहता हूँ। You have changed the situation for Esther. तूने एस्तर के लिए सारी परिस्थिति को बदली थी प्रभु। Lord, I am here. मैं यहाँ पर हूँ खुदा। Change my तू situation. मेरी भी परिस्थिति को बदल Reverse दे। my situation. मेरी परिस्थिति को तू पलट दे प्रभु। Reverse my situation. मेरी परिस्थिति को बदल दे खुदा। Reverse my financial crisis. मेरे पैसों की तंगी को तू बदल दे खुदा। Make it abundance. इसे बहुतायत में तू बदल दे। Reverse my medical reports. मेरी मेडिकल की रिपोर्ट को तू बदल दे। Come on, reverse my business loss. मेरे बिजनेस में जो नुकसान हुआ है उसे तू बदल दे खुदा। Come on. Whatever you recollect, you remember, say, Lord, if it's not growing, say, reverse it, Lord, let it grow. ऐसी कोई भी चीज जो आपको याद आती है जो बढ़ नहीं रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू इसे बढ़ा दे। Jesus. Glory to you, Father. Thank you, Lord. The broken heart एक टूटा हुआ दिल is the best sacrifice. ये एक अच्छा बलिदान है। It's really showing, Lord, you are my everything. ये यही दर्शाता है कि परमेश्वर तू मेरा सब कुछ है। Lord, you take everything, Lord. तू सब कुछ ले ले खुदा। You take control, Master. तू मेरे जीवन पे अधिक कंट्रोल को ले खुदा। Yes, Lord, we have planned so much. प्रभु जी हमने बहुत सारी योजनाएं की। Today I won't call out for prayers. आज मैं प्रार्थना के लिए नहीं बुलाऊंगा। God is putting in my heart. परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहे हैं You have planned, कि आपने योजनाएं बनाई, but you are not succeeding in your plans. लेकिन उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली। You have plans for the career of your children. आपने आपके बच्चों के जो भविष्य के लिए जो योजनाएं बनाई। I don't know whom I am speaking, but you are here. मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन आप यहाँ पर हो। You cannot see the career. आप परमेश्वर अपने बच्चों का जो भविष्य नहीं देख पा रहे। You have planned, आपने योजनाएं करी, but the plans are not fulfilled. लेकिन वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाई। God is really touching you. परमेश्वर आज सच में आपको छूने जा God रहे is हैं। touching you. परमेश्वर छू रहे हैं। You are my brother, you are my sister. God is touching you. आप मेरे भाई हो सकते हैं, आप मेरी बहन। परमेश्वर आपको छू रहे हैं। Yes, you are in the presence of the Lord. आप परमेश्वर की उपस्थिति में Your plans are being touched by God. आपकी जो योजना है परमेश्वर उसे छू रहा है। God is touching you. परमेश्वर आपको छू रहे हैं। Come on, pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Pray. आइए प्रार्थना God करेंगे। is showing me you have planned, but it's not being succeeded परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कि आपके पास योजनाएं हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है, because some obstacles are coming regularly. लेकिन कुछ न कुछ अड़चनें हमेशा आ रही है। Not getting it properly done. वो पूरी रीति से ठीक से नहीं हो पा रहा है। You start, आप शुरू तो कर लेते हैं, you start, but in the middle you are getting end. You are stuck. आप शुरू करते हैं, लेकिन कहीं मध्य में जाके जो है आप रुक जाते हैं। You see the impossible situation, again you land back. आप फिर से असंभव चीजों को देख लेते हैं और आप पीछे आ जाते हैं। Come, we will pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। If you are sick, we will pray for you. अगर आप बीमार हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। If you want the situation to be reversed, we will pray for you. अगर आप चाहते हैं कि परिस्थिति आपके लिए बदल जाए, हम If you प्रार्थना are the करेंगे। one whose plans have been stuck, we will pray for you. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके प्लान्स जो है रुक गए हैं, हम आपके लिए प्रार्थना Come on, करेंगे। raise your hands up. आइए हम अपने हाथों को ऊपर The उठाएं। one who needs prayer, please raise your hands up. एक ऐसे व्यक्ति जिसे प्रार्थना की जरूरत है वो सब हाथ उठा ले। Put your hand over your chest. अपने हाथ को एक दूसरे हाथ को अपने सीने पे रखे Say, Lord, I am here, Father. और कहे प्रभु जी मैं यहाँ पर हूँ। My Father, मेरे पिता, my Father, मेरे पिता, I am here. मैं यहाँ पर हूँ। Listen to my prayer. मेरी प्रार्थनाओं को सुन, Listen to my cries. मेरे रोने को तो सुन ले खुदा। See my situation, Lord. मेरी परिस्थितियों को देख परमेश्वर।
Lord, you have not created me to be in this situation. तूने मुझे इस परिस्थिति में रहने के लिए नहीं बनाया है। Yes, Lord. You have created me to be blessed. तूने मुझे इसलिए बनाया कि मैं आशीषित रहूं। Lord, I want to declare your words on my life today. प्रभु जी, मैं तेरे वचनों की घोषणा मेरे जीवन में करना चाहता हूँ। Your word says no weapon formed against you will prevail. तेरा वचन कहता है प्रभु जी, कोई शस्त्र नहीं बने जो मुझ पे प्रबल हो जाए। Lord, forgive me if I have hurt you, Lord. प्रभु जी, अगर मैंने तुझे दुख दिया है तो तू तुझे मुझे माफ कर दे। Lord, in the name of Jesus, प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में I give my life to you, Lord. मैं मेरे जीवन को तुझे दे देता हूँ। I give my family to you, मैं Lord. मेरे परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ। I give my everything to you, Jesus. मैं मेरा सब कुछ तुझे देता हूँ खुदा। You are my master, Lord. तू मेरा स्वामी है। You intervene me, Lord. तू मध्यस्थी कर प्रभु, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Father, in the name of Jesus, प्रभु जी, यीशु के नाम में I pray over my church. मैं मेरे कलीसिया के लिए तुझसे प्रार्थना I करता pray हूँ। over the broken hearts. मैं हर टूटे दिल के लिए प्रार्थना करता I हूँ। pray over the sick. मैं हर एक बीमार के लिए प्रार्थना I करता हूँ। pray over the plans which are stuck. मैं हर एक उस योजनाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कहीं न कहीं रुक गई है। I pray in the name of मैं Jesus यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। to turn and reverse the verdict of their life right now. उनके जीवन के हर एक निर्णय को तू बदल के पलट दे खुदा। Reverse their verdict in the name of Jesus. उनके जीवन के फैसलों को तू बदल दे मेरे Reverse खुदा। their medical reports in the name of Jesus. उनके मेडिकल के रिपोर्ट को तू बदल दे Reverse खुदा। their financial crisis in the name उनके of पैसे की Jesus. तंगी को तू पलट दे Oh, खुदा। reverse their spiritual growth, उनके Lord. प्रभु जी आत्मिक जीवन को तू बदल दे खुदा। Lord, I pray to change, मैं प्रार्थना करता हूँ एक बदलाव के लिए खुदा, a transformation. एक पूरे तरीके का I बदलाव। release the power of transformation over their life. मैं उनके ऊपर पूरे बदलाव की आत्मा को दे देता हूँ खुदा। Lord, I pray for my church. प्रभु जी, मैं मेरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। These people are your people. ये लोग प्रभु जी तेरे लोग हैं। We are your created. हम तेरे हाथ की रचना है। Have mercy on us. हम पर तू दया कर। Let your favor be with us. तेरा अनुग्रह हमारे साथ रहने दे। And everything which is against us, elevate us right now. जो भी चीज प्रभु जी हमारे खिलाफ है प्रभु जी, Let us to elevate us. हमें उठा वो दे हमें पाए. उठाने के लिए है खुदा। Our enemy will fall on the plans which they have creating against us. हमारे शत्रु प्रभु जी उनकी स्वयं की योजना जो उन्होंने हमारे खिलाफ बनाई है उसमें गिर जाते हैं। Give your grace to us, Lord. तेरा अनुग्रह हम सबको दे। Give your power to us. तेरी सामर्थ्य दे परमेश्वर। We want to be victorious in the name of Jesus. हम यीशु के नाम में विजयी होना चाहते We हैं। want to face challenges and overcome the challenges in your name. हम हमारे जीवन में हर एक चैलेंजेस को सामना करके प्रभु जी उस पे विजय पाना Give us चाहते हैं। authority to say. हमें तो अधिकार दे कि हम Give बोल us power पाए। to speak your name. तू हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे नाम की घोषणा कर I पाए। pray in the name of मैं Jesus. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ And we all say amen. और हम सब मिल के कहेंगे आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Let's clap your hand and give glory to आइए God. तालियां बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे Yes, more loudly. और जोर से Come on, say hallelujah. कहेंगे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Come on, God bless you all. आइए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।